Yes. Exercise number 2 of present continuous tense. Sentence structure is, first of all, we write the subject, then we write the helping verb. There are three options that we can use in present continuous tense, and those three options are is, are, am, depending upon the subject. If the subject is singular, we use is. If the subject is plural, we use are. And if the subject is I, we use am. All right. Now, students, if you have any problems or any questions, we will have the last 5 minutes for these questions asking. Right now, you just concentrate on the lecture. All right. As these are the negative sentences, so with the helping verb we add not to make it negative, obviously. So that will make subject, then it comes is not, are not, or am not, depending upon the subject. Then the verb, as you know, it is the continuous tense, and we were using first form of verb plus ing. Now this first form of verb plus ing is used in the continuous tense. This ing is for, I told you that in the end of all the कंटिन्यूस टेंस सेंटेंसेस हमारे पास क्या आ रहा होता है, रहे हैं, रहा है, रही है, ये आ रहा होता है. इट शोज द कंटिन्यूस, गिव्स यू अ क्लू that the sentence belongs to present continuous tense. Now the first sentence, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं. You are not telling me your address. You subject, are is the helping verb, not is used to make it negative. Telling, now tell is the first form of verb and we add ing to make it telling. You are not telling me your address. Address पता यानी कि आपके घर का पता जो भी. Okay. Now I told you that with you, sometimes students get confused कि you के साथ is क्यों नहीं आ रहा. You, लेकिन I told you that you is such a subject कि देखें, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी कि यू शुड डू योर वर्क प्रॉपरली. और अगर मैं पूरी क्लास से बात कर रही हूँ तब भी मैं यही कहूंगी कि यू शुड डू योर वर्क प्रॉपरली. सो यू इज सच अ सब्जेक्ट विच इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड एज प्लूरल एज वेल. दैट इज व्हाई यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ऑल राइट. वो जुलूस की कयादत नहीं कर रहा है. वो जुलूस की कयादत नहीं कर रहा है. He is not leading, कयादत करना, lead करना, leading the procession. What is procession? जुलूस. जुलूस यानी कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किसी भी खास मकसद के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, that is a moving thing is a procession. He is not leading the procession. गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है. जलसा पब्लिक मीटिंग और मीटिंग सिंपली. सदारत प्रिजाइडिंग. द गवर्नर is not presiding. The governor is not presiding the meeting. The governor is not presiding the meeting. Number 4. नंबर 4, वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है. वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है. He is not he is not working honestly. Now this sentence can be written in this way, that he is not doing his work with honesty. ये वाली बात इस तरह से भी लिखी जा सकती है, but I think this is simple. He is not working honestly. Simple and short. Okay, तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो. राय होता है ओपिनियन, हर किसी की चीज के बारे में हमारी जो भी ख्याल होता है उसे हम राय कहते हैं. You are not criticizing. Now what is criticizing? किसी भी
किसी चीज के बारे में उसमें खराबियां निकालना, उसमें बुराइयां तलाश करना, कीड़े निकालना जिसको कहते हैं, उसको क्रिटिसाइजिंग कहते हैं। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन माई ओपिनियन। ओपिनियन, राय। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन माई ओपिनियन। ये अफसर अपने फराइज से गफलत नहीं बरत रहा है। दिस ऑफिसर इज नॉट। अच्छा, गफलत बरतना यानी कि उसकी तरफ ध्यान ना देना और ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना, यानी कि इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना। ठीक है, सो दिस ऑफिसर इज नॉट निग्लेक्टिंग his duties, फराइज, duties. This officer is not neglecting his duties. नंबर 7, मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं। द लेबरर्स, आई टोल्ड यू, मजदूर के लिए लेबरर का वर्ड आता है। द लेबरर्स आर नॉट shirking. This is shirking means काम से जी चुराना और ऐसे करना कि जैसे काम नहीं करना है और ये इस तरह करके। So shirking, shirking, shirking work. काम से जी चुराना, shirking work. The laborers are not shirking work. Okay. Number 8, हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं। We are not smelling the flower. We, subject, are helping verb, not, to make it negative, smelling the flower. लड़कियां जमात में ऊंग नहीं रही हैं। ऊंगना मतलब ऐसे जैसे फीलिंग स्लीपी, जैसे नींद आ रही है या इस तरह। गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास। बी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स ऑफ डोजिंग। DOZING इज डोजिंग। गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन क्लास। ओके, आफ्टर दैट वी हैव, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है। वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है। He is not feeling ashamed of his sin. Sin होता है गुनाह। He is not feeling ashamed of his sin. He is not feeling ashamed of his sin. Okay. Number 11, बावर्ची खाना नहीं पका रहा है। The chef is not cooking food. The chef is not cooking food. Okay, number 12, लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं। The boys are not drinking. The boys are not drinking sugarcane. Sugarcane होता है गन्ना। The boys are not drinking sugarcane syrup. The boys are not drinking sugarcane syrup. Okay. औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है। The woman is not calling for help. The woman is not calling for help. अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है। अमजद is not changing clothes. Amjad is not changing clothes. All right. औरत number 15 is, औरत चक्की नहीं चला रही है। The woman is not working on grinding stone. अच्छा, चक्की क्या होता है? चक्की होती है जिसके अंदर आटा या कोई भी चीज होती है, उसे पीसा जाता है। तो अब तो खैर मशीन्स पे ये सारे काम होते हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी लोग चक्की और ये सब चीजें यूज करते हैं। तो चक्की क्या होती है? उसे कहा जाता है ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंड करने के लिए जो पत्थर की चीज बनी होती है उसे चक्की कहते हैं। द वुमन इज नॉट वर्किंग ऑन ग्राइंडिंग स्टोन। ऑल राइट, now comes exercise number 3, the interrogative sentences. That means the questions. Interrogative sentences, the questions. How do we make the interrogative sentence in present continuous tense? आप देखेंगे कि इसमें I told you when we were doing the interrogative sentences of present
indefinite tense, that whenever, this rule goes for all the tenses, that whenever we make an interrogative sentence, the helping verb comes before the subject. द हेल्पिंग वर्ब, अब आप देखें ये जो नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाए थे, तो हेल्पिंग वर्ब जो था इज है, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इस केस में ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ये एक रूल होता है टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. But there are some question words. I told you question words like when, why, who, where, how. ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. अगर आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है, क्योंकि जाहिरी बात है व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही सबसे पहले आएगा. ओके, so the question word comes first if there is a question word in the sentence. Now, then comes the helping verb, that is, am, are. Then comes the subject. Then comes the verb, first form of verb plus ing, as we are already doing. And then the object. And make sure that an interrogative sentence is always ending in a question mark. Now, if the whole sentence is correct and you have not put a question mark in the end of interrogative sentence, you will not consider the sentence complete. इसको हम complete नहीं समझेंगे. हम इसको complete उसी वक्त consider करेंगे जब इसके end में question mark लगा होगा. Now look at the first sentence here. क्या चांद निकल रहा है? क्या चांद निकल रहा है? Is the moon coming out? Is the moon coming out? Then क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? Are bad boys throwing stones on buses? Are bad boys throwing stones on buses? Number 3, क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? Are the laborers digging the soil? Are the laborers digging the soil? Number 4, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? Now, look at this. क्यों is the question word. क्यों means why. तो जाहिरी बात है कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो कहाँ आएगा? सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आएगा. देन वी विल राइट द हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट. सो तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? Why are हेल्पिंग वर्ब. Why are you selling your house? अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो कैसे लिखते हैं, Why you are selling your house. Wrong. क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. दैट इज व्हाई द हेल्पिंग वर्ब इट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. मेक श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग द हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट. वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस का सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा. आपने जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है. इसलिए आपका सेंटेंस बनेगा व्हाई आर यू सेलिंग योर हाउस. ठीक है. क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है? Is बशीर buying a new motorcycle? मोटरबाइक भी कुछ लोग लिखते हैं, so that is okay. Is बशीर buying a new motorcycle? Okay. Number 6, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? Where are the women? Where are the women washing clothes? Where are the women? कहाँ के लिए देखो वर्ड क्या आता है, कहाँ, where are the women washing clothes? इब्राहिम आसिफ,
बेटे अपनी वीडियो को स्टॉप करें। ऑल राइट, नेक्स्ट, कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं? कितने आदमी? हाउ मेनी मेन, हाउ मेनी मेन आर शेयरिंग दिस बिजनेस? हाउ मेनी मेन आर शेयरिंग दिस बिजनेस? नंबर 8, तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो? तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो? हाउ मच मनी आर यू ड्रॉइंग? आई टोल्ड यू, बैंक से पैसे निकलवाने को ड्रॉ मनी कहते हैं, ठीक है जी। हाउ मच मनी आर यू ड्रॉइंग फ्रॉम बैंक? हाउ मच मनी आर यू ड्रॉइंग फ्रॉम बैंक? ओके, मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है? मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है? दावत देना, इनवाइटिंग, ऑब्वियसली। हु इज इनवाइटिंग मी? हु इज इनवाइटिंग मी फॉर डिनर? हु इज इनवाइटिंग मी फॉर डिनर? ओके, बेचारे पनाह गुजीन कहाँ जा रहे हैं? तलहा महबूब, स्टॉप योर वीडियो। बेचारे पनाह गुजीन कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर द पुअर रेफ्यूजीज गोइंग? अच्छा भाई, पनाह गुजीन क्या होता है? पनाह गुजीन वो होते हैं कि जैसे कभी किसी इलाके में सैलाब आ जाता है और अब समटाइम्स वॉर स्टार्ट्स इन some areas in some countries, the people, their homes, they get destroyed, उनके घर तबाह हो जाते हैं। जब उनके घर तबाह हो जाते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है, तो they are forced to live in camps, उसी कैंप्स वगैरह या किसी भी जगह पे उन्हें पनाह लेनी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए। जाहिर है वो कहीं रहेंगे तो वो जो जगह होती है, कैंप्स में रहते हैं या जो भी तरीका होता है, बहरहाल। तो वेयर आर द पुअर रेफ्यूजीज? पनाह गुजीन होते हैं रेफ्यूजीज, जो पनाह लेने के लिए कहीं पर भी टेम्पररीली कहीं पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। पुअर का मतलब है बेचारे। Where are the poor refugees going? नंबर 11, क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है? क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है? इज द शॉपकीपर, दुकानदार शॉपकीपर, इज द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग? ओवर चार्जिंग क्या होता है? जो किसी भी चीज का रेट होता है उससे ज्यादा पैसे लेना, एक्स्ट्रा पैसे लेना, उसे ओवर चार्जिंग कहते हैं। इज द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर? कस्टमर, ग्राहक। इज द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर? हाँ, ओके, ऑल राइट। तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? whose message whose message are you carrying? carrying का मतलब है आप खुद भी जा रहे हैं, कोई चीज लेकर भी जा रहे हैं, तो you are carrying something, ठीक है। whose message are you carrying? नंबर 13, ठेकेदार कब कब काम शुरू कर रहा है? द क्वेश्चन वर्ड इज कब, व्हेन। व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर? ठेकेदार जो होता है उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर starting the work? When is the contractor starting the work? Number 14, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Number 15, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो? रिसाला मैगजीन। तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो? कौन सा? Which? Which magazine? Which magazine are you reading? Which magazine are you reading? Okay. Now, students, that is the end of present continuous tense.
And if you have any question regarding present continuous tense, you may ask now. All right, the tests that you have uh, that are starting from 10th of July, it includes present indefinite and present continuous tense. And we have done all the exercises of present indefinite and present continuous that are in your book. Now, the point is that how do we prepare for translations? Never try to learn translations. If you will try to learn translations, you will definitely you will get stuck, because you cannot learn. How many sentences you would learn? कितने याद कर लोगे? कितने कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. मतलब आपकी बुक में जितने हो सकता है आप वो वाले याद कर लें, रटे लगा लें, पर ट्रांसलेशन जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लर्न नहीं करते, उनका मेथड सीखते हैं, उनका स्ट्रक्चर सीखते हैं. अगर आप इफ वंस यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वंस यू नो द रूल ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस, तो आपको फिर उसके बाद आपको वो लर्न करने की जरूरत पड़ती नहीं है. अच्छा, अब क्या होता है कि आपने होता यह है कि आपने करना क्या होता है. हाउ डू यू लर्न इट? फर्स्ट ऑफ ऑलवेज लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि इस वाले एग्जाम में यू हैव टू टेंसेस एंड द सेंटेंसेस आर ऑल मिक्स्ड अप. The what is the first step? For the first step is always to identify the sentence correctly. अब आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने, वो कैसे करेंगे हम, उसका तरीका क्या है? ऑलवेज लुक एट द लास्ट टू वर्ड्स ऑफ द उर्दू सेंटेंस. हमेशा उर्दू सेंटेंस के आखिरी दो वर्ड्स को देखें, वो आपको जरूर वो क्लू देंगे कि आपको पता चलेगा कि ये कौन से टेंस के हैं. नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द सेंटेंस करेक्टली, एक बार आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया, देन कम्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपको एक बार पता चल गया ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आपने फौरन क्या करना है? आपने फौरन उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने जहन में रिवाइज करना है, अपने जहन में लेके आना है. एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह की चीज होती है कि वो आपको लर्न करनी होती है. अच्छा भाई, अब आपने वो जहन में आप वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ले आते हैं, देन स्टार्ट क्रिएटिंग, मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस. उसके बाद आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं. उसको बनाते किस तरह से हैं? उसको बनाने का तरीका यही है कि आप वन बाय वन, जल्दबाजी नहीं करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते जाएं और जहाँ सब्जेक्ट लिखा है वहां पे सब्जेक्ट को पुट करें, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है वहां हेल्पिंग वर्ब को पुट करें, जहाँ वर्ब लिखा है वहां उसको पुट करें, ऑब्जेक्ट लिखा. इसी तरीके से क्या होगा कि आपका सेंटेंस पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. और आप एक बात और ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास सेंटेंस पूरा लिखा जाता है, वंस यू रीड द सेंटेंस, यू डेफिनेटली गेट अ क्लू इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंस. आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ रॉन्ग है. तो ये चीज, सबसे पहला काम तो यही करें कि आपने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने उसको बना लेना है. और उसके बाद आपने नाउ व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन केस ऑफ present continuous tense? Subject, then comes is, are, am, the helping verbs. Helping verbs कौन सा यूज करना है? There are three options, but it depends upon the subject. कि भाई आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपने. Abisha Harim, do you want to ask any question, bete? All right. So उसके बाद क्या हुआ है कि आपने, और there are three options but it depends upon the subject कि आपको सब्जेक्ट के लिहाज से depends. Like if it is singular you will use is, if it is plural you will use are, and if it is
I, you will use am. Then comes the verb, the first form of verb plus ing, and then the object. All right. I guess there are some students who want to ask some questions regarding this thing, because I want you to prepare it very well. These are easier. So you all should have your English B exercise and workbooks and your pencils with you when we will be doing the essay Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. You will keep on writing the meanings on difficult words that we will underline and we will discuss. So thank you very much. That is all with the class today, and Allah Hafiz.